बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ के इस सेशन में ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस किया जाएगा। ग्रेड 7 के साइंस को डिस्कस करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी आपको, इनमें ग्रेड 7 के लिए टेक्स्ट बुक जो कि कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ का एक हिस्सा है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की इन्फोर्समेंट्स और एक्टिविटीज़ के लिए और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक ग्रेड 7 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स पैक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसमें तमाम SLOs अपनी मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। रिसोर्स पैक और समर पैक cantabpublisher.com की वेबसाइट पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 7. It's our Chapter 3 that is under discussion. Chapter 3 is about the reproduction in plants. Previously, we have been discussing steps involved in sexual reproduction. Now we will compare the both type of reproduction, sexual as well as asexual reproduction in plants. The SLO that will be achieved through this lecture is differentiate between sexual and asexual reproduction. The SLO demands the comparison between both type of reproduction. Before going to the main topic, that is about the difference between the both types of reproduction, it will be better if we summarize the special features involved in sexual reproduction. We all know that sexual reproduction involves both type of parents, male parents as well as female parents. Male parents transfer its characters in the form of sperms that are carried by pollen grains, whereas female parent transfer its character through egg, which is female gamete and present in ovary. These sperm and egg unite in the process of fertilization and form embryo. Embryo is protected by seed. It is enclosed in seed, and when it finds suitable conditions, it grows into an individual organism. So here we find a point that in sexual reproduction, both types of parents are involved, and the new individual developed through the process of fertilization. Embryo is the embryo is the structure that carries the genetic information of both parents. अब अगर दो पेरेंट्स अलग अलग हैं तो उनके कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होंगे डेफिनेटली। तो मेल स्पर्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टेमन, यानी मेल स्पर्म, मेल गैमीट इज प्रेजेंट और प्रोटेक्टेड बाय pollen grains which are present on stamen. Here you can see a stamen. A stamen has two parts, filament and anther. Anther contains the pollen grains that are encoded with that surrounds the sperms. And female egg is protected in pistil. Here is a pistil. It is the ovary which contains ovule, and ovules contain eggs. It is the filament of ovary or the style, and this is the stigma. So in sexual reproductions, parents have special reproductive parts. It is the male reproductive part, which is stamen, and the pistil is the female reproductive part. And as a result of fertilization and embryo formation, seed formation takes place. Seed is actually a cover, a structure that protects the embryo or the baby plant. These are the special features involved in sexual reproduction. Now we'll see that asexual reproduction and observe whether these features are also present in asexual mode of reproduction or not. And then at the end of the lecture, we'll compare the both types. We'll find the spore from our textbook at page 36, and the remaining part is on page 37 under the heading of sexual and asexual reproduction,
and the topic number is 3.4. Before going into the detail of asexual reproduction, we observe or we study the types or the modes of asexual reproduction, which are vegetative propagation, cutting, layering, fragmentation, and spore formation. And we'll observe all the features that we have recently discussed in sexual reproduction in these types. Here we will deduce our comparison. So, the first type of sexual reproduction, first mode of sexual reproduction is vegetative propagation. What is vegetative propagation? Let's see. Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants produced from roots, stems, leaves and buds. It means in vegetative propagation there is no role of flower, no role of reproductive parts. So it's useless whether they are present or not. It's mostly, the vegetative propagation takes place in potatoes. There are many other plants which grow through vegetative propagation, but it is a famous example. A potato, you have observed, contains eyes. These eyes are actually a bud. When these buds are cut and sown into the ground, new plants develop. As you can see, each bud develops a new plant. From these buds, leaves and the shoot arise. Roots also develop from each bud of potato. With the passage of time, the old stem, which is a potato which was sown, shrinks and the new potatoes develop. It is the original picture. All these potatoes are developed from a single bud. You have seen that the next generation comes through a stem and no flower, no stamen, no pistil is involved. So what did we learn from this vegetative propagation? Only single parent involved, no specific reproductive organs because the new plant developed from buds and buds are present throughout the stem. But just recall here that potato is a stem plant. It is the stem that has been swollen due to the accumulation of food. And as there is no reproductive part, no pollen, no eggs involved, so no fertilization will be takes place. New plants do not require the formation of seed because buds are enough to produce new plants. Characteristics of single parents are involved. There is only one potato that develops all these lot of potatoes, bunch of potatoes. So these features have been observed and compared with respect to sexual reproduction. Next comes the cutting, another mode of asexual reproduction. What is cutting? The process in which the stem of a plant is placed in moist soil to produce a new plant is known as cutting. अब इस कटिंग में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जैसा कि रोज, उनके स्टेम ब्रांचेस, स्टेम्स के कुछ पार्ट को कट ऑफ कर लिया जाता है. यह ख्याल रखता है कि प्लांट की ब्रांच जिसे काट लिया जाए उस पर कोई ना कोई बड मौजूद हो, कोई नोड्स प्रेजेंट हो. उस प्लांट के ब्रांच को ज़मीन में दबा दिया जाता है और उसको रेगुलर तरीके से ग्रो करवाया जाता है, यानी उसे सनलाइट, वाटर और दूसरी तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. कुछ दिनों के बाद एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं. ये चूंकि रोज़ में होता है, रोज़ में एक्चुअली फ्लावर्स भी प्रेजेंट हैं और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यानी इनमें स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ प्लांट को ज़्यादातर कटिंग के थ्रू ग्रो करवाया जाता है, यानी इसमें प्लांट का फ्लावर का ज़्यादा रोल नहीं है. रोज़ प्लांट इसमें सीड फॉर्मेशन के थ्रू भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है, 3 से 4 मंथ के लिए. लेकिन कटिंग के थ्रू ग्रो किए जाने वाले रोज़ प्लांट्स रैपिड ग्रोथ शो करते हैं, बहुत जल्द इसमें से नया पौधा निकल आता है. अब आपने देखा कि रोज़ प्लांट्स की ये ब्रांचेस थी, स्टेम थे, इनको ज़मीन में सो किया गया नंबर 1 स्टेप में, इनको वाटर दिया गया, सनलाइट प्रोवाइड की गई. कुछ दिनों के बाद इसमें से लीव्स अराइज होना शुरू हो गए और फिर आफ्टर सम मोर डेज फ्लावर्स डेवलप. ये वो देख लें, आपको एक जूम हाई रेजोल्यूशन पिक्चर दिखाई गई है कि जो न्यूली
सोन स्टेम्स थे रोज के, उसमें से छोटे छोटे से लीव अराइज हो रहे हैं। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें हमने देखा कि कटिंग में भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, यानी इसमें मेल और फीमेल पेरेंट का की डिफ्रेंशिएशन नहीं थी न्यू प्लांट्स में। नो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अगर जब स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसा कि फूल हैं वो रोज के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कटिंग के मेथड में उनका रोल नहीं होता। कटिंग में चूंकि सिर्फ एक प्लांट से ही, एक पेरेंट से ही स्टेम ली जाती है, लिहाजा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई भी डबल पेरेंट या कोई स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हुआ न्यू प्लांट्स को डेवलप करने में। चूंकि ये कटिंग थी, इसमें मेल और फीमेल गैमेट की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं थी, सो नो फर्टिलाइजेशन एंड नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड, चूंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट से ब्रांच ली गई है, सो एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। इसके बाद आते हैं हम लेयरिंग की तरफ। लेयरिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है। अब इसमें क्या होता है कि समटाइम्स स्टेम ऑफ प्लांट बेंड्स डाउन, इट इज कवर्ड विद सॉइल एंड इज प्रोवाइडेड विद वाटर, दिस स्टेम इज एबल इनफ टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि एक प्लांट ग्रो कर रहा था, उसका स्टेम बेंड डाउन हो गया, उस झुके हुए स्टेम के ऊपर मट्टी आ गई, उस मट्टी में जो झुका हुआ पार्ट था उसमें से न्यू प्लांट की रूट्स और फिर आगे से शूट्स डेवलप होना शुरू हो गए। यहाँ से देखें एक न्यू स्टेम था, वो न्यू स्टेम डाउन द अर्थ, डाउन द सॉइल, डाउन द ग्राउंड बेंड हो गया, इसके ऊपर ये सारी सॉइल आ गई। कुछ दिनों के बाद न्यू रूट्स डेवलप होना शुरू हो गई और फिर वो जो बेंडेड स्टेम था वही अराइज होके न्यू प्लांट डेवलप कर लिया। इस तरह से अब ये वाली ब्रांच होगी, ये भी अगर ज़मीन में चली जाए तो इसमें से भी न्यू प्लांट्स, न्यू रूट्स डेवलप होंगी और फिर ये वाली ब्रांच भी न्यू प्लांट को डेवलप करेगी। इसी तरह ये जो न्यू प्लांट डेवलप होगा, अगर उसकी कोई ब्रांच नीचे ज़मीन में चली जाए तो वहाँ से भी न्यू रूट्स डेवलप होना शुरू होंगी और फिर नया प्लांट ज़मीन से बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये प्लांट, यानी एक लेयर बाय लेयर ये प्लांट ग्रो करते हैं। सो इसके कैरेक्टर्स देख देते हैं। ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, आपने देखा कि सिर्फ एक ही प्लांट की ब्रांचेस बेंड डाउन हुई और उनसे न्यू प्लांट डेवलप हुआ। इस मोड में सिर्फ स्टेम इन्वॉल्व हुआ, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर, कोई भी फ्लोरल पार्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, लिहाजा ना तो फर्टिलाइजेशन हुई और ना ही सीड फॉर्मेशन हुई। और सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद आते हैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ। फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। एक कंप्लीट प्लांट है, उसकी बॉडी कुछ वक्त के बाद कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और कंडीशंस मिलने पे फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाती है और हर फ्रेगमेंट एक न्यू प्लांट डेवलप कर लेता है। ये ज़्यादातर स्पायरोजाइरा में ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट प्लांट था। स्पायरोजाइरा इज अ प्लांट। इस प्लांट ने खुद को बाइफरकेट कर लिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया और हर हिस्से से न्यू प्लांट डेवलप हो गया। इसके स्पेशल फीचर्स हैं कि ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही प्लांट ने दो नए प्लांट बना लिए, सो नो ड्यूल पेरेंट्स इन्वॉल्व, ओनली कैरेक्टर्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स वर प्रिजर्व्ड। No specific reproductive organs, no fertilization, no seed formation. Then comes another type of asexual reproduction, that is spore formation. Spore formation, special spore bearing organs are present in some plants, especially in fungi and algae. The organs bear spores. The spores germinate to develop a new plant. Asexual spores are produced by bacteria, fungi, algae, mosses, ferns and many vascular plants. अब इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगी, एक ही प्लांट पे स्पोर्स डेवलप होंगे और वही स्पोर्स सो कर दिए जाएंगे और नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। जैसे कि आप फंजाई में देख सकते हैं, ये रिलीज ऑफ स्पोर्स है थ्रू एयर। स्पोर्स एयर में स्प्रेड होने के बाद जहाँ जब भी उन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी टेम्परेचर की, एनवायरनमेंट की, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये एक एक्चुअल पिक्चर है, ये लीव्स पे आप स्पोर देख सकते हैं।
ये मोसिस के स्पोर्स हैं। ये हर स्पोर से एक नया प्लांट डेवलप होगा। इसमें भी कोई मेल और फीमेल पेरेंट की डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ना तो सीड फॉर्मेशन हुई, ना फर्टिलाइजेशन हुई और ना ही स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हुए। सो सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर्स प्रिजर्व कर लिए गए नेक्स्ट जनरेशन में। ये तो थे कुछ टाइप्स जिसमें हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्पेशल फीचर्स इन्वॉल्व हैं। अब हम एक बाकायदा कंपैरिजन करेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, और टेक्स्ट बुक का ये पेज है 38। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने उसकी 5 टाइप्स में देखा कि ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ट्रू, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी मेल प्लांट भी इन्वॉल्व है और फीमेल प्लांट भी। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लोअर प्लांट्स में होती है, हायर प्लांट्स में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये लोअर प्लांट्स में होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ हायर प्लांट्स में होती है जिसमें फ्लोरल फॉर्मेशन हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते, प्रेजेंट हों भी तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फुली इन्वॉल्व होते हैं। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती। हमने देखा कि 5 मोड में किसी तरह की फर्टिलाइजेशन नहीं थी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है और इसके नतीजे में जाइगोट बनता है। अब चूंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व था एसेक्सुअल में, तो कैरेक्टर्स भी सिंगल पेरेंट के ही इनहेरिट होंगे, लेकिन इसमें चूंकि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल, तो इसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होंगे, उनके फीचर्स इनहेरिटेड होंगे। नो सीड फॉर्मेशन in asexual reproduction, whereas seed formation takes place in sexual reproduction. So here was a brief comparison between asexual and sexual reproduction. Next comes the homework. होमवर्क में से टेस्ट एक्सरसाइज 2 में से आप पहले करेंगे और ये आपको मिलेगी पेज 39 पे। पार्ट ए है पेज 39 का कि फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यू आर प्रोवाइडेड विद सिंगल स्टेटमेंट followed by 4 options and you have to find out the right answer by analyzing the statement. From part A you will solve question number 2. We can observe the process of layering in. अब लेयरिंग का प्रोसेस किस में होता है? रोज में होता है, ट्यूलिप में होता है, जैस्मीन में या ब्रायोफिलम में? आप थोड़ा सा इंटरनेट से भी सर्च करके देखिएगा कि जैस्मीन का प्रोसेस इनमें से किस प्लांट में होता है। राइट आंसर का सर्कल फिल कीजिएगा। उसके बाद पार्ट बी है। पार्ट बी में आपने शॉर्ट आंसरिंग करनी है, यानी 3 to 4 सेंटेंसेज में अपना आंसर रैप अप करना है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यील्ड्स नो वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिजम्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब चूंकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व था, उसी के तमाम फीचर्स ट्रांसफर हो गए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आई। वेरिएशंस तब आती हैं जब कोई चेंज आए, जब एक से ज़्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व हों। सो आपने स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग रीजंस के साथ जस्टिफाई करना है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर? नंबर 3 है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आपने डिस्क्राइब करना है कि ये कैसे होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एनलिस्ट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। You can simply solve the questions. Next comes the review exercise and you will come at page 40. Number 6 क्वेश्चन देखिए जो आप सॉल्व करेंगे। Which of the following plant shows cutting? इनमें से किस प्लांट में कटिंग का प्रोसेस होता है? रोज में, मॉस में, एल्गी में या फंजाई में? पार्ट सी आप सॉल्व करेंगे जिसमें से क्वेश्चन 2 है आपका आज के टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन 3। डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने इन दोनों मोड्स को कंपेयर करना है। इसके बाद आप अपना समर पैक देखिए पेज 31 पे। समर पैक में से आप एक्टिविटी 3.3 सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्टिविटी सॉल्व करने से पहले आप इस सेक्शन को भी बगौर स्टडी करेंगे और सॉल्व करेंगे। टेक 2 फ्लावर्स फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। दो फ्लावर्स आपने लेने हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड हैं। रिमूव एंथर्स फ्रॉम 1 फ्लावर एंड कार्पल फ्रॉम द अदर फ्लावर एज शोन इन द फिगर। उनमें से एक फ्लावर का हमने मेल पार्ट रिमूव कर दिया है और दूसरे प्लांट का फीमेल पार्ट रिमूव कर दिया है। एक्सप्लेन हाउ विल दीज प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स टू रिप्रोड्यूस। अब इन दोनों फ्लावर्स में क्या प्रोसेस होगा, कैसे सीड फॉर्मेशन होगी, दोनों की रीज़न बतानी है आपने। पिक्चर्स को गौर से देखिएगा ताकि आप इजीली इसका आंसर लिख सकें। हमारा होमवर्क बस यहीं तक था, एक्टिविटी तक। नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकेंड स्टेज फर्टिलाइजेशन स्टडी करेंगे। Thank you very much.